Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm your today's host for today's session, Shahzeb Ali, Secretary Information Law Students Council, Pakistan. And we are today in a live session on the topic of recent constitutional developments in Pakistan, held by Law Students Council, Pakistan, with the collaboration of Kanundan, the legal diaries. I hope we'll have a great session today. Before starting the session, I would like to introduce our guest speaker for today's session, who has been kind enough to give us some of his very precious time. He is Mr. Barrister Ali Tahir Arai. Sir Ali Tahir Arai has been a great writer on variety of topics related to the legal, constitutional, and current affairs matters for the leading English daily newspapers of Pakistan. He has done his Bharat Law from the Honorable Society of Lincolns in UK. He is also an accredited civil and commercial mediator and arbitrator from the UK. Besides this, he has also served as an arbitrator in more than 20 cases, and along with that, he also holds experience of around 5 years in the legal sector. Honorable Barrister Ali Tahir has been currently working as a lecturer at Shaheed Zulfikar Ali Bhutto University of Law. Sir, welcome to the platform of Law Students Council and Kanundan, and thank you so much for giving us some of your precious time. You're most welcome, and in fact, it is me who's very grateful कि आपने मुझे बुलाया. I'm very, very, very grateful, and thank you for a very kind introduction as well. Very pleasure, sir. It's an honor to have you on board with us. Sir, first of all, I would like you to highlight our today's topic, overall give a detailed overview to our law students over the recent constitutional development that has taken place in Pakistan. And secondly, what actually is meant by constitutional development. Over to you, sir. You see, when we talk about constitutional developments, of course, it is some change today which we believe will ultimately shift constitutional law in the future. What happened is that until yesterday, I had thought that I will be speaking about the review jurisdiction of the Supreme Court. And the idea behind it was that recently Qazi Faiz Isa साहब की review judgment आई और हमने कहा कि उसको जरा देखें कि क्या डिटेल जजमेंट आए बगैर भी रिव्यू जजमेंट आ सकती है और कौन सी पावर्स हैं, क्या स्कोप होता है रिव्यू का. बट येस्टरडे फिर एक और सुप्रीम कोर्ट की एक सिंगल मेंबर जजमेंट आ गई और वो आई ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आई थिंक फिर मैंने देखा कि चूंकि 2-3 फैसले इस तरह के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए और अभी तक क्योंकि इसके ऊपर कोई वास्ट डिस्कशन नहीं हुई या इसके ऊपर जिसको कहते हैं कि उस तरीके से बहस नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि व्हाई डोंट वी डिस्कस व्हाट सादिक है बीइंग सादिक एंड अमीन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज, और क्या आखिर मतलब क्या है सादिक और अमीन का. क्योंकि देखें, अगर आप पनामा गेट को देखें तो इशू ये था मियां नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने एक इकामा जो था वो उनका जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं था. वो जब ऑन रिकॉर्ड जेआईटी के अंदर आया तो उन्होंने कहा दैट इज अ मिस डिक्लेरेशन, एंड मिस डिक्लेरेशन मींस डिस्क्वालिफिकेशन. And later on they held that disqualification is for lifetime. But yesterday the Supreme Court has at least in my view changed the law, and now they've held that misdeclaration is not enough for a disqualification. तो बड़ा एक डिफरेंस आया है. अच्छा, अब इसको जरा शुरू से टॉपिक को लेके चलते हैं. लेट्स गो इन अ सर्टेन पैटर्न. तो देखें, जो कोवरेंटो की जुरिस्डिक्शन होती है, हम सबको पता है कि कोवरेंटो क्या होता है. कोवरेंटो का मकसद ये होता है कि कोई बंदा, एनी पर्सन, नॉट एन एग्रीव्ड पर्सन, एनी पर्सन कैन गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही कैन से कि सर प्लीज सी whether this certain person has holding office in accordance with law or not, as in उसके पास अथॉरिटी ऑफ लॉ है ऑफिस होल्ड करने की या नहीं. तो जाहिर है जितने भी लॉ मेकर्स हैं वो तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और कोवरेंटो जुरिस्डिक्शंस उनके हाई कोर्ट्स के भी सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने लगती रहती है. लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के जो तकाजे हैं, जो लॉ है, उसके अंदर बड़ी वाइड डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं. खास तौर पे
जो आर्टिकल 62(1)(f) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि ये कहता है कि जब तक कोई भी बंदा सादिक और अमीन नहीं है, he can neither be a member of the National Assembly and neither be a member of the Provincial Assembly. और ये जो प्रोविजंस थे आर्टिकल 62 के, ये सादिक और अमीन वाले, ये इंट्रोड्यूस कराए गए थे थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जियाउल हक साहब के दौर के अंदर। तो ये कोई पार्लिमानी अमेंडमेंट नहीं थी, बल्कि एक डिक्टेटर की अमेंडमेंट थी। और आज से 6 साल पहले, आई रिमेम्बर 2015 की बात है, आसिफ सईद खान खोसा साहब, जो पनामा गेट में भी बेंच को लीड कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एट दैट टाइम ही वाज जस्टिस आसिफ सईद खोसा। दिस इज इन 2015। इसहाक खाकवानी केस है, इट्स अ रिपोर्टेड जजमेंट। तो इसहाक खाकवानी केस के अंदर आसिफ सईद खोसा साहब ने इंटरप्रेट करते हुए सादिक और अमीन को आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर कहा कि these terms are impracticable. These are not terms which can be judicially resolved. This is not our job. This is not the job of the court. वो बैठ के देखे कोई बंदा नमाजें पढ़ता है या नहीं पढ़ता, कोई बंदा रोजे रखता है या नहीं रखता, कोई बंदा जो है वो टखनों से ऊपर शलवार पहनता है या नहीं पहनता। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द कोर्ट्स। इफ एट ऑल दिस इज अ जॉब ऑफ द इलेक्टोरेट। वो फैसला करें कि उन्होंने असेंबलियों में किसको भेजना है, किसी बड़े इंटेलिजेंट किस्म के आदमी को भेजना है, किसी रिलीजियस इंक्लाइनेशन के आदमी को भेजना है, किसी प्रोफेशनल को भेजना है। Whatsoever it is for the electorate to decide. And in that Ishaq Hakwani case itself, Asif Ali Said Khosa Sahab had said, Asif Said Khosa, my apologies, Justice Asif Said Khosa had said that it was a nightmare if Article 62(1)(f) was to be interpreted and applied. तो इसको तो बड़ा एक नाइटमेयर आ जाएगा, क्योंकि देखिए ना, कोर्ट कैसे ये फैसला करेगी कि कोई बंदा सच्चा है, ईमानदार है कि नहीं है। और फिर कोर्ट्स उठा के पार्लियामेंटेरियंस को अगर बाहर फेंकना शुरू कर देंगी, सो दैट विल बी अ सेवियर अफरेंट टू डेमोक्रेसी। दिस वाज द इसहाक खाकवानी केस ऑफ 2015। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है कि पनामा गेट आता है। एंड पनामा गेट आपको पता है कि 2017 की बात है। 2017 के अप्रैल में ही, वी आर इन अप्रैल राइट नाउ, इनफैक्ट वी आर इन मई, बट अप्रैल में ही जो है वो फैसला आया पनामा गेट का। और पनामा गेट में आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं, वो उस वक्त बेंच को लीड कर रहे थे, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, और उन्होंने ये कहा कि yes, it might be a nightmare as was held in my judgment 2 years before. However, they are a part of the constitution. If they are a part of the constitution, then the judges have to apply it. So you see, at least in my opinion, there was a sharp uh, about turn on whether the court should apply the provisions of Sadiq and Amin or not. In the Ishaq Hakwani case, it was held that it would be a nightmare to do so. And in the Panama Gate case, it was said that the court does not have discretion whether to enforce it or not, but the court is obliged to do it. And that Article 62 and 63 apply to a person's public conduct, not private conduct, not general conduct. हम ये नहीं देखने बैठ रहे कि देखे ना इसहाक खाकवानी केस में, क्योंकि यही कहा हुआ था कि हम तो नहीं देख सकते कि कौन नमाजें पढ़ता है, कौन रोजे रखता है, कौन बड़ा शरीफ किस्म का है, कौन नहीं है। और फिर पनामा गेट केस में इसको थोड़ा सा शिफ्ट इस तरह से किया गया कि उन्होंने कहा कि हम पब्लिक कॉन्डक्ट को जरूर देख सकते हैं, बेशक हम प्राइवेट कॉन्डक्ट को देखें या ना देखें, मगर पब्लिक कॉन्डक्ट हमने देखना है कि उसका पब्लिक कॉन्डक्ट कैसा। जाहिर है ये इंटरप्रिटेशन वाज नॉट फॉलोड बाय द मेजॉरिटी। इनफैक्ट जो अर्लियर 2 जजेस थे, जो इस वक्त करंट चीफ जस्टिस हैं, वो और आसिफ सईद खोसा साहब, उन लोगों ने जो जजमेंट दी थी वो माइनॉरिटी जजमेंट थी। और मेजॉरिटी ने, आपको याद होगा कि फैसला ये किया था कि एक GIT बनाई थी, उस GIT रिपोर्ट के ऊपर
अकामा डिस्कवर हुआ था और उस अकामा के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। मगर ये पनामा गेट से पहले जो कोर्ट्स की एक सोच हमें नजर आती थी वो ये थी कि रिस्ट्रेन शो किया जाए, लॉ मेकर्स को डिस्क्वालीफाई ना किया जाए सिर्फ इस वजह से कि वो सादिक और अमीन नहीं है। और ये तकरीबन कोई पिछले 20 या 30 साल की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही थी वो इसी तरह से डेवलप हो रही थी। अलबत्ता जब 2009 में, थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं ताकि इसकी जरा बैकग्राउंड को देखें। 2009 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे और वो जाहिर है एक ऐसे चीफ जस्टिस साहब थे जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जाने जाते थे, पूरा बड़े ज़गीर और पूरी दुनिया आलमी सतह पर उनकी एक पहचान थी, क्योंकि वो एक, आपको पता है, एक लॉयर्स मूवमेंट हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोज हेडलाइंस में होता था। तो बेशक जियो हो या बेशक ARY हो, जो भी हो, पहली हेडलाइन जो है वो ये चलती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला कर दिया, ये फैसला कर दिया और ये फैसला कर दिया। सो ही वाज वेरी वाइडली नोन। नाउ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, you know, he used to exercise suo motu jurisdiction right off the bat. He was a judge who had started to disqualify lawmakers, and he started to do this by taking suo motu jurisdiction. Not one, not two, not three, but dozens of lawmakers were disqualified. किस चीज पे वो डिस्क्वालीफाई हुए? कोई फेक डिग्री पे डिस्क्वालीफाई हुआ, कोई डुअल नेशनैलिटी के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुआ, किसी के इसी तरह जिस तरह पनामा गेट में एक कामा था कंसीलमेंट ऑफ जो है एसेट्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुआ। और इसी चीज को फॉलो किया गया सब्सिक्वेंटली 2017 की पनामा गेट वाली जजमेंट के अंदर। नाउ जो मेजॉरिटी ओपिनियन था, जी सॉरी, यू सेइंग समथिंग? No, sir. Continue, please. जो मेजॉरिटी ओपिनियन था पनामा गेट केस के अंदर वो लिखा गया शेख अजमत सईद साहब की तरफ से, और उन्होंने इस बात को नोट किया कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको सादिक और अमीन होना चाहिए। और ये सादिक और अमीन वो सिर्फ तब नहीं होगा जब एक कोर्ट की डिक्लेरेशन होगी। अलबत्ता आसिफ सईद खोसा साहब ने ये जरूर डिसाइड किया कि या उनका व्यू ये जरूर जजमेंट में सामने आया कि ये काम पार्लियामेंट का है कि वो देखे कि कौन सी सूरतों में डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कौन सी सूरतों में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे इशू ये था कि पार्लियामान ने इवन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा हुआ था। तो उसके ऊपर जो जस्टिस शेख अजमत सईद साहब थे उन्होंने कहा कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की ये डिस्क्रेशन नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट की ये, वंस अगेन आपसे सईद खोसा साहब को मिरर करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्लिगेशन है कि जिसको वो समझे कि वो अपने पब्लिक कॉन्डक्ट के अंदर सादिक और अमीन नहीं है, वो उसी वक्त जो है उसको अल्टीमेटली डिस्क्वालीफाई करे। अच्छा, इसके ऊपर शेख अजमत सईद साहब जो हैं वो यहाँ पे रुके नहीं, बल्कि शौकत भट्टी के केस में दोबारा से जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने सू मोटो नोटिस लिया और सू मोटो नोटिस लेके ये देखा कि वेदर शौकत भट्टी हिमसेल्फ इज सादिक और अमीन और नॉट, और उसके ऊपर फैसला भी सादिर किया। और उसी के अंदर उन्होंने लिखा कि अगर कोई डिस्क्वालिफाइड बंदा, यानी एक ऐसा बंदा जो कि सादिक और अमीन नहीं है, वो पार्लियामेंट का मेंबर बनता है या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर बनता है, तो ये फेलियर जो है सुप्रीम कोर्ट का होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व नहीं कर सके।
तो ये अभी आप देखें 2019 तक जो है ये एक चल रहा था, एक जिसको कहते हैं कि एक इंक्लिनेशन कोर्ट्स की इसी तरफ चल रही थी, मगर बीच बीच में ऐसा जरूर आया कि अल्टीमेटली कई जगहों के ऊपर उसको चेंज किया गया, या कई जगहों के ऊपर जो एक बड़ी हार्श किस्म की पेनल्टी थी, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ, वो नहीं लगाई गई। अच्छा, अब इसी का कल भी एक फैसला आया, और कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने लिखा। 3 मेंबर बेंच था। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सरबराही कर रहे थे, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद एंड जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी साहब ने इस डिसीजन को लिखा, और इस डिसीजन ने कल ये चीज क्लियर की दैट मिस डिक्लेरेशन इज नॉट इनफ टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई हल्की जुबान इस्तेमाल नहीं की, बल्कि अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इट इज रीइटरेटेड, यानी कि इस बात को बार बार वाजे किया जा रहा है दैट नॉन डिस्क्लोजर या मिस डिक्लेरेशन इज नॉट सफिशिएंट टू परमानेंटली डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ कैंडिडेट अंडर आर्टिकल 62(1)(f ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एमपीए थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, शमूना बादशाह केसरानी, जिनके केस में ये कल फैसला हुआ है। इनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने भी और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी पनामा गेट की रोशनी में, पनामा गेट की जजमेंट की रोशनी में इनको डिस्क्वालीफाई किया था फॉर लाइफ, बट कल इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। और इन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the purpose and intention needs to be seen behind the non disclosure or mis declaration, यानी कि अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर है या मिस डिक्लेरेशन है तो उसके पीछे इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट जीत के आया है वो सिर्फ तभी डिस्क्वालीफाई होगा जब उसने डिसऑनेस्टली कोई एसेट्स एक्वायर किए हो और उनको हाइड कर रही हो टू डिराइव सर्टेन बेनिफिट्स। लेकिन सिर्फ इस बात के ऊपर मेरी कोई जमीन थी जो मैंने अपने फॉर्म के अंदर डिक्लेयर नहीं की, या मेरा कोई इकामा था वो मैंने फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किया, या मेरा कोई अकाउंट था, बैंक अकाउंट था जो मैंने फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किया, इस बात के ऊपर डिक्लेरेशन जो है, इस बात के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अच्छा, जैसा सेड शमूना बादशाह केसरानी जो है, शी वाज डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम अगर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ हर लैंड, ऑफ हर प्रॉपर्टी जो उन्होंने इनहेरिट की अपने पेरेंट से, अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर तो नॉन डिस्क्लोजर या मिस डिक्लेरेशन जो है वो इस टाइप का है कि वो कोई इलीगल एडवांटेज देता है कैंडिडेट को, तो फिर तो इट वुड लीड टू टर्मिनेशन ऑफ हिज कैंडिडेचर, लेकिन अदरवाइज नहीं। अगर कोई ओमिशन हो गया है, वो उसने कोई मेंशन नहीं की अपनी प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्वालीफाई, and not only disqualify but disqualify permanently. Of course, this was something that was within the minds of our lordships as well. And so far as they also held that जब भी आप आर्टिकल 62(1)(f के तहत किसी को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो उसके लिए जो एविडेंस है उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। अब देखें शाहजेब, मैं और आप दोनों एज लॉयर्स जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन होती है उसके अंदर फैक्चुअल एस्पेक्ट हमेशा नैरो होता है, क्योंकि उसके अंदर एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसके अंदर एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं हो सकती, उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकती, एविडेंस को उस तरह से नहीं देखा जा सकता जिस तरह एक सूट में ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में देखा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो होती है, जो रिट जुरिस्डिक्शन होती है, उसका स्कोप नैरो होता है, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक फंक्शंस होता है। तो जब द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, जब तक एविडेंस को प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज ना किया जाए एक कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से, तब तक
ये मिस डिक्लेरेशन डिस्क्वालिफिकेशन में रिजल्ट नहीं करेगी। तो मैं समझता हूं कि जो पनामा गेट वाला केस था वो एटलीस्ट आज इस जजमेंट के आने के बाद वो अपने ग्राउंड शेक कर गया है, वो अपनी ग्राउंड से हिल गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि शायद आपको याद हो या ना याद हो कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का भी एक केस आया था जिसके अंदर बिल्कुल नवाज शरीफ वाला इशू था। आमा ही मौजूद था उस केस के अंदर भी नवाज शरीफ की तरह ही, बिल्कुल इट वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू नवाज शरीफ केस। और अतर मिनल्ला साहब, who was the chief justice of the Islamabad High Court right now, he was, I think, then not the chief justice but only a judge of the High Court. He ruled के हालांकि आई डू नॉट एग्री विद इट, और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं एक फॉरेन मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूं कोर्ट में, एक ऐसे बंदे को जो लोगों के वोट लेके आया उसको मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूं, मगर मुझे ये करना पड़ रहा है। और मुझे ये इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि पनामा गेट की डिसीजन के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, और मैं चूंकि हाई कोर्ट हूं तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले मेरे ऊपर बाइंडिंग है। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को इकामा होल्डर होने की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया। हाउएवर, वो जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको ही सेट असाइड कर दिया, एंड द कोर्ट हेल्ड कि सिर्फ इस वजह से कि किसी कैंडिडेट ने कोई नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर किसी एसेट को डिक्लेयर नहीं किया है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, बल्कि ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसको जो नॉन डिस्क्लोजर है उसके पीछे कोई डिसऑनेस्ट इंटेंट है, या उस नॉन डिस्क्लोजर के पीछे कोई इलीगल इंटेंट है जिसकी वजह से हम उसको डिस्क्वालीफाई करें। सिर्फ इकामा होने की वजह से किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसी तरह से उसी ख्वाजा आसिफ के केस में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो एक्सप्लेनेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वेदर वो जो एसेट की नॉन डिस्क्लोजर है उसके अंदर डिसऑनेस्टी मौजूद है या नहीं है, क्या वो वैसे ही गलती हो गई है लिखते लिखते, या सचमुच में उसके अंदर कोई मसला है। अच्छा, इसी तरह इस वक्त जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद अहमद साहब, उनका केस भी आया था, और जिस वक्त उनका केस आया तो उधर रावलपिंडी के ही एक पॉलिटिशियन है शकील अवान, जिन्होंने उनके खिलाफ जो है ये को वारंटों की पिटीशन फाइल की थी। हुआ ये था कि जो प्रॉपर्टी शेख रशीद साहब के पास थी वो 1000 कुछ कनाल बनती थी, लेकिन नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने 900 कुछ कनाल उसको जाहिर किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर सॉरी, वी कैन नॉट डिस्क्वालीफाई हिम ओनली ऑन दिस बेसिस। 2-1 का जजमेंट था। मेजॉरिटी ने कहा that where non-disclosure या misdeclaration gives an illegal advantage to a candidate, only then such misdeclaration will lead to disqualification and not otherwise. अच्छा, जब आप इमरान खान नियाजी का केस देखते हैं, हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान नियाजी, तो मेजॉरिटी व्यू ने, आपको पता है, वंस अगेन यही बात होल्ड की थी कि अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर है, और यहाँ इमरान खान के केस से ही सारी बात शुरू हुई थी कि अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर है तो वो नॉन डिस्क्लोजर जो है वो उसके अंदर एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी होना चाहिए। तो अगर आपने अपनी वाइफ से कोई चीजें ली हैं और उनको नॉमिनेशन पेपर्स में डिस्क्लोज नहीं किया तो दैट वुड नॉट लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। या अगर आपने हुकूमत से कोई प्लॉट लिया है और उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया, so that would not lead to disqualification. And Justice Faisal Arab, who agreed with the majority, observed कि इस चीज की कई मिसालें हो सकती हैं जहां पे कोई ओमिशन हो सकता है, किसी से कोई गलती हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोर्ट उसको डिसऑनेस्टी ही समझे। और उन्होंने, मैंने कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, उन्होंने जो कुछ एग्जांपल्स दिए वो ये थे कि किसी की कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, वो उसने जो है ना सब्सिक्वेंटली उसको नहीं डिस्क्लोज किया,
या कोई पेंशन किसी को मिल रही थी, कोई बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो डिस्क्लोज नहीं किए, तो इन ओमिशंस को बैड जजमेंट कहा जा सकता है, नेग्लिजेंस कहा जा सकता है, लेकिन इसको डिसऑनेस्टी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इसको डिसऑनेस्टी नहीं कहा जा सकता इस वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन है दैट कैन नॉट रिजल्ट। तो इसी तरह जो है वो जहांगीर तरीन साहब का केस है कि जहां पे कोई फाइंडिंग ऑफ फैक्ट मौजूद हो किसी जीते हुए कैंडिडेट के ऊपर, तो देखा ये जाएगा कि क्या वो अफर्मेटिव एविडेंस के ऊपर थी, वो प्रिजम्पशुअस तो नहीं थी, उसमें इन्फ्रेंसेस तो ड्रॉ नहीं हुए भी थे। और अल्टीमेटली ये तमाम केसेस की नज़र में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कल शमूना बादशाह केसरानी केस में अपना पिछला जो सारा प्रेसिडेंट था उसकी लाइट में पनामा गेट से थोड़ा सा डिस्टिंक्शन लेते हुए जो है वो एक लॉ हमारे सामने आ गया है। मैं समझता हूँ अब बड़ा वेल सेटल्ड लॉ है, क्योंकि पनामा गेट से पहले इसहाक खाकवानी केस में और फिर उसके बाद पनामा गेट के बाद आप देख लें जितने भी तमाम केसेस हमने देखे, इमरान खान नियाजी साहब का केस देख लें, शेख रशीद अहमद साहब का केस देख लें, मुराद बख्श साहब का केस देख लें, कल वाला जो शमूना बादशाह के सरानी का केस है वो देख लें। तमाम केसेस में ये चीज सामने आती है कि शायद जो मेजॉरिटी व्यू पनामा गेट में लिया गया कि सिर्फ मिस डिक्लेरेशन के ऊपर विदाउट एन एक्चुअल फाइंडिंग ऑफ डिसऑनेस्टी सिर्फ मिस डिक्लेरेशन के ऊपर क्या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं, तो वो व्यू अब शिफ्ट हो रहा है। और मेरे लिए भी ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैं जस्ट टू एंड दिस एंड टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू, मैं जिस वक्त नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया लाइफ टाइम के लिए, तो आई थॉट मेरा पर्सनल व्यू ये था कि चलें दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट हैज वंस एंड फॉर ऑल decided it and this is the end of the story, this is the end of Nawaz Sharif's political career. But however अब आप देखें कि एक्सपीरियंस का फर्क क्या होता है। मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम देखना कि वो कोई ना कोई रास्ता बना के किसी ना किसी तरह से वापस आ जाएगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस ये करते हैं, पॉलिटिशियंस किसी ना किसी तरह रास्ता बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि देखें इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे उनको काफी पीछे आना पड़ेगा, तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अभी जो रिसेंट हमारे सामने डेवलपमेंट्स नजर आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि शायद बहुत से ऐसे पार्लियामेंटेरियंस होंगे जो कि अल्टीमेटली अपना रास्ता पार्लियामान में वापस बना सकेंगे। अच्छा, नॉट ओनली दैट, मैं अब आपको बताऊं कि एक, मैं उनका नाम मैं पार्लियामेंटेरियन का मैं भूल रहा हूं, एक एमपीए थे और उनको इसी तरह 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से। डिस्क्वालीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कंसील्ड एसेट्स। अगले इलेक्शन में उसने दोबारा अपना जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें नॉमिनेशन पेपर्स दोबारा जमा कराए और उसके अंदर उसने जो एसेट्स कंसील किए थे उनको दर्ज कर दिया और वो जीत के वापस सीट जीत के वापस पार्लियामेंट में आ गया। तो मुझे लग रहा है कि इसी टाइप की कोई सिचुएशन जो है वो आगे आने वाले दिनों में शायद बन जाएगी। और ये जो एक रिव्यू जुरिस्डिक्शन बहुत ज्यादा हमारे पास एक्सपेंड हो गई है काजी फायज ईसा वाले केस के अंदर, यानी कि हमें पता है कि वैसे सिंपली स्पीकिंग रिव्यू जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर होती है। वन इज के कोई नए फैक्ट सामने आ गए हों, अब डिटेल्ड जजमेंट आएगी रिव्यू की तो हमें पता लगेगा कि वो रिव्यू जजमेंट क्यों एक्सेप्ट हुई, कौन से ऐसे नए फैक्ट्स थे जो कि उस वक्त मौजूद नहीं थे जिस वक्त असली जजमेंट आई और आज मौजूद थे। और नंबर टू ये था दैट देयर इज एन एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो अब डिटेल जजमेंट आएगी तो हमें पता लगेगा कि क्या एरर अपेरेंट था। लेकिन
एटलीस्ट कोई इस टाइप का एरर मुझे लगता नहीं था, क्योंकि अभी तक डिटेल जजमेंट आई ही नहीं थी, तो एरर अपेरेंट कैसे होता ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। क्योंकि देखिए ना, डिटेल जजमेंट नहीं आई तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वेयर इज द एरर अपेरेंट। तो मुझे ये लग रहा है कि जो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है वो भी बहुत ही ज्यादा वाइड हो चुकी है। और इसकी एक मिसाल आपको ये भी मिलती है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब 10 साल का मुआहदा करके बाहर गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त लेजिटिमाइज किया था परवेज मुशर्रफ साहब के कू को, लेकिन 7 साल बाद जब वो वापस आना चाहते थे और उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये इजाजत दी थी कि अब आप मुल्क के अंदर वापस आ जाएं और कोई नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर वापस आने से ना रोके। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल विंड्स जो हैं ये चेंज होती रहती हैं, और मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशनल विंड्स इस वक्त चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मेरे ख्याल से हुई है वो ये हुई है कि जो जुडिशियल ब्रांच ने लेजिस्लेटिव ब्रांच के ऊपर एक, वो कहते हैं ना, स्वॉर्ड ऑफ डोमिकल्स, स्वॉर्ड लटक रही होती है ऊपर, वो जो स्वॉर्ड एक जुडिशरी की लेजिस्लेचर के ऊपर लटक रही थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ऊपर खींचती जा रही है। और आने वाले वक्तों के अंदर जो है ये जो फैसला था पनामा गेट में, देखिए कल ये फॉलो नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में भी जो पनामा गेट वाला फैसला है कि मिस डिक्लेरेशन के मतलब है कि डिसऑनेस्टी, वो शायद फॉलो होगा। दिस इज माय व्यू, एंड I believe this Uh, is what I wanted to say today. सर थैंक यू सो मच। बात असल में 62(1)(f) पर हो रही है, सो जाहिर है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न चेंज हो गया है, शिफ्ट हो गया है। वी हैड वन पर्सपेक्टिव इन आवर माइंड एंड सुप्रीम कोर्ट इज इन रीसेंट जजमेंट has changed that. So, sir, do you think is there any legal remedy available for those who have been disqualified prior to this judgment? Ex-foreign minister, ex-prime minister, they've been disqualified, and other parliamentarians who have been disqualified on this basis कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है। तो अगर वो किसी तरीके से अब प्रूफ कर दें कि दैट वाज एन ओमिशन, नॉट इट वाज नॉट द इंटेंटिवली डन, सो क्या उस पर कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है उनके लिए? जी बिल्कुल लीगल रेमेडी है। देखें, एज वी वर सेइंग शाहजेब, कि एक तो मैंने कहा कि देखिए ना, रिव्यू जुरिस्डिक्शन को अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बहुत ज्यादा इनलार्ज कर दी है। यानी अभी डिटेल्ड उसके रीजंस आने हैं, बट नजर ये आता है कि रिव्यू के अंदर अब सब कुछ ही हो सकता है। तो रिव्यू के अंदर कोई अगर फैसला हुआ हुआ है तो कोई दूसरे जजेस भी उस फैसले को रिकॉल कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि ये हमेशा से इट हैज बीन सेटल्ड लॉ कि जहां पे कानून चेंज हो जाता है तो उस कानून का बेनिफिट जो है वो जरूर मिल सकता है। मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि एक लेट्स से कि एक मिनिमम एज जो है टू फाइट एन इलेक्शन, लेट्स से वो किसी बंदे की पूरी नहीं हो रही। सब्सिक्वेंटली हाउएवर अगर वो एज के ऊपर पूरा आ जाता है, यानी कानूनी तकाजों के मुताबिक पूरा आ जाता है, तो वो फिर उस इलेक्शन को फाइट कर सकता है। और ये चीज रिव्यू में भी ली जा सकती है मिसाल के तौर पर, और रिव्यू जुरिस्डिक्शन होती ही इस वजह से है। मिसाल के तौर पर मेरे ऊपर ये इल्जाम है कि मैंने किसी का कत्ल किया है, सब्सिक्वेंटली एक वीडियो प्रूफ सामने आ जाता है जिसके अंदर नजर आ रहा है कि असल में जो बंदा जिसने कत्ल किया वो कोई और है, वो बंदा नैब हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, तो अब मैं तो रिव्यू में जाऊंगा ना कि नाउ आई एम नो लॉन्गर एट फॉल्ट, एंड सो आई मे बी सेट फ्री। I will file an I will file a review on the same way, and in the same way, let's talk about some of the people that have been disqualified. I think all of those people, whether it is Jahangir Tareen, whether it is Nawaz Sharif, will in the future have a way to invoke the review jurisdiction of the Supreme Court. And अगर ये लॉ देखें अब बड़ा वेल सेटल्ड होता जा रहा है, अगर ये लॉ इसी तरह वेल सेटल्ड रहा तो ये बिल्कुल हो सकता है, देयर इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी that these disqualifications might come to an end for them, especially since the Supreme Court is again and again and again and again holding that misdeclaration is not enough to show dishonesty.
पनामा गेट से पहले भी और पनामा गेट के बाद भी जुरिस्प्रूडेंस सारी यही डेवलप होती रही है। तो बिल्कुल मुझे ये नजर आ रहा है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कुछ जो पार्लियामेंटेरियन 62(1)(f में अल्टीमेटली डिस्क्वालीफाई हुए हैं, हो सकता है कि उनके लिए अब कोई रास्ता या रूम बने कि वो वापस असेंबलियों की तरफ आए। Shazeb, I'm sorry I can't hear you. Okay, I'm so sorry, my mic was mute. Sir, I was talking about the recent, very important judgment that was against a sitting judge of the Supreme Court, Justice Qazi Faiz Isa. So, how do you see is the misdeclaration different in the case of our ex-prime minister and the sitting judge? What difference is there found in both the cases? You see, एक डिफरेंस तो बिल्कुल सामने है ना, इट इज स्टार्क, इट इज देयर, एंड दैट इज दैट जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने जो 62(1)(f का टेस्ट है उसको पूरा करना है, बट द सेम टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो लेजिस्लेचर के ऊपर तो वो है कि वो सादिक और अमीन हो, लेकिन वही रिक्वायरमेंट एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लगाई। सो नंबर वन, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस दैट इज प्रेजेंट हियर। नंबर टू, in so far as your question is concerned, I would agree with you. I would completely agree with what your question was trying to ask. एंड द फैक्ट इज कि देखें, पहले शौकत अजीज सिद्दीकी का अभी रिसेंटली कुछ ही साल पहले केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर गया था, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उन जज साहब को फारिग कर दिया गया। जब उन जज साहब को फारिग कर दिया गया तो अब उन्होंने एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई है, वो पिटिशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक रोल है, और वो रोल ये है कि उसने जो देखे, वो एक ऐसा इदारा है जिसने देखना है जजेस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आती हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं, और कोई जज ऐसे हैं कि जिनको रिमूव करना चाहिए या नहीं। वरना बाकी मुल्कों के अंदर आपको पता है कि लेजिस्लेचर्स इम्पीच कर देती हैं जजों को, लेजिस्लेचर्स उठा के बाहर फेंक देती हैं जजों को, अगर वो ये समझती हैं कि उनके पास ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो समझती हैं कि ये जज जो है ये इज नॉट परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज और ही इज इनकैपेसिटेटेड, दे कैन इम्पीच हिम, एंड दैट इज व्हाट सेपरेशन ऑफ पावर्स इज, दैट इज व्हाट फ्यूजन ऑफ पावर्स इज। पाकिस्तान में क्योंकि जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है वो बड़ी वीक रही थी, तो हमने अपने पास एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाया, जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अल्टीमेटली सीनियर मोस्ट जजेस ही इस मुल्क के बैठते हैं। तो वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा आपने बनाया वो भी इस चीज को देख सकता था कि वेदर सम मैलाफाइड्स आर इन्वॉल्व्ड और नॉट, मगर अल्टीमेटली एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पिटिशन की और उसके अंदर एक फैसला आया। वो फैसले के डिटेल्ड रीजन आने से पहले पहले रिव्यू फाइल हो गई, वो रिव्यू 1 साल चलती रही। मैं कई दफा सुप्रीम कोर्ट गया तो मैं आपको बताऊं कि केसेस जो हैं वो आधे केसेस तो आप देखें ना, एक बंदा अगर 10 साल से जेल में है तो रे क्या फर्क पड़ता है, वो केस नहीं सुना जाता था, बट एंड टाइम फिक्स के ऊपर काजी फायज ईसा साहब का केस उठाया जाता था। और मैंने एक चीज और भी नोट की, शायद थोड़ी थोड़ी सी कंटेम्पशियस हो जाए, बट कंटेम्पशियस है नहीं, लीगली नहीं है। मैं जब उस कोर्ट रूम में जाके बैठा तो सरीना ईसा साहब जो हैं, साहिबा सरीना ईसा साहिबा जो हैं, जो हमारे लिए बड़ी ऑनरेबल हैं, बहुत ऑनरेबल हैं, वो जो है वो अपना केस चला रही थी। और मैं आपको बता रहा हूँ शाहजेब कि वो वर्ड टू वर्ड उन्होंने अपनी जितनी रिव्यू पिटिशन थी वो वर्ड टू वर्ड पढ़ी। और अगर किसी जज साहब ने, यानी मुनीब अख्तर साहब का मैंने देखा कि उन्होंने बीच में सवाल पूछने की कोशिश की, तो काजी फायज ईसा साहब खुद खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं आप रुकें, इस बात का जवाब मैं दूंगा। तो अगर मेरे जैसा कोई वकील या इवन मैं समझता हूँ बड़ा कोई अच्छा वकील भी हो, प्रोफेशनली कैपेबल वकील, वो भी अगर अपनी पिटिशन को वर्ड टू वर्ड पढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो छोड़े, हाई कोर्ट भी उसको 5 मिनट नहीं सुनेगी। 5 मिनट बाद वो कहेंगी आप बैठ जाएं जी, हमने सुन लिया आपको, और नहीं सुन रहे, हम पॉइंट पे आए आप। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि कुछ एटलीस्ट देखें, आई बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, इफ आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेस,
if I'm speaking against other institutions which are flouting constitutional and legal values, but I do not mark when my own institution do it, I do not criticize it, then I'm a hypocrite, and I don't want to be a hypocrite. So I Yeah. believe that the review judgment that came in without a detailed judgment being there, यानी कोई judgment आएगी तो ही रिव्यू होगा ना. अब यहिया अफरीदी, जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने तो डिसमिस कर दी थी पिटीशन ही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की, और बेंच भी डिफरेंट था. और उसके बाद जिस तरह से इस रिव्यू को एक्सेप्ट किया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि जाहिर है जब भी कोई हुकूमत किसी जज के खिलाफ केस बना के भेजेगी तो उसके अंदर ये हो ही नहीं सकता कि थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ मेलाफाइड ना हो. थोड़ा सा तो होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए सोचती हैं. तो मैं समझता हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा, खुद भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसको काम करने दिया जाता. उसमें भी पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस ही बैठे हुए हैं, और एफबीआर की रिपोर्ट अगर उधर चली जाती तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं थी. काजी फायज ईसा साहब सुरखरू होके वापस आ जाते. I'm pretty sure that he was not guilty of what was being alleged against him, but the choice of the forum was wrong. और फिर एक जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी उसका जो व्यू है वो ठीक नहीं जाता, क्योंकि लोग भी इस बात को देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि बिकॉज ही इज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही पिटिशंस द सुप्रीम कोर्ट, एंड द सुप्रीम कोर्ट गोज आउट ऑफ इट्स वे, listens to it on a daily basis for 1 year, and finally accepts the review. I do not completely agree with it, and especially I'm repeating my point कि जब अभी डिटेल्ड जजमेंट ही नहीं आई थी तो ये पता कैसे लगा कि कौन सी रीजनिंग जो है उसके अंदर वो एक एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि अभी तो रीजनिंग ही नहीं आई थी, अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया था. तो आई डू नॉट एग्री विद हाउ द रिव्यू ऑफ द काजी फायज ईसा केस वाज डिसाइडेड. if anything, I believe that everybody in this country, whether it is a judge or a general or a journalist or a politician, must be accountable to the law. He must be equal before the law. And that is what our great constitution clearly espouses in Article 4 and Article 25 of the Constitution. Exactly, sir. Thank you so much. There's a famous quotation, let the justice be done, though heavens may fall. And that is the motto of Law Students Council as well. It was really a shift that we saw, something new, a precedent that we saw, that before the detailed judgment, a review petition was filed, and then the decision came on the basis of review petition. Sir, we are moving towards the session of question answer session from the audience. So I would request our audience to comment your questions related to the topic if you have any. We have one question from one of the audience. Sir, what is the time limit to file review petition in any case, and especially the cases related to the disqualification? Okay, you see, now review is generally something where limitation does not arise. Why not? Because review में होता क्या है? देखिए, review is not an appeal. Review is not an appeal. Review is only available सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी और सीपीसी में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी सीपीसी की तरफ जाते हैं. तो रिव्यू सिर्फ दो चीजों पे हो सकता है. वो क्या होता है? नंबर 1, कोई नई इंफॉर्मेशन सामने आ गई हो, लॉ किसी नए तरीके से डेवलप हो गया हो जो मेरे लिए एडवांटेजियस हो. जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि एक वीडियो आई, मैंने कत्ल किया है, मैं कन्विक्टेड हूं, लेकिन एक वीडियो आई जिसमें कोई और सामने आ गया, सब्सिक्वेंटली वो पकड़ा गया. यहाँ पे रिव्यू मेंटेनेबल है. अब वो 30 दिन बाद भी हो सकती है, 60 दिन बाद भी हो सकती है, और आपको पता है 3 साल बाद भी हो सकती है और 6 साल बाद भी हो सकती है. Number 2 is that there is an error apparent on the face of the record. Now, whenever there is an error apparent, that has to be addressed as well. So subsequently, when you come to review, the entire purpose of review is कि एक final हमने एक छोटा सा नैरो सा स्कोप रखा हुआ है कि जहां पर अगर कोई ऐसी चीज नजर आ जाए तो हम फिर जस्टिस के तकाजों के मुताबिक, इंसाफ के तकाजों के मुताबिक उसका फैसला कर सकें. बट उसका स्कोप बड़ा नैरो होता है, और उसका स्कोप सिर्फ ये होता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिसरफेस हो गई है जो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी जिस वक्त फैसला हुआ,
और नंबर 2 कोई एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, यानी कि इसके अंदर आप अपेरेंटली हमें कोई ऐसी जबरदस्त किस्म की गलती नजर आ रही है मुंह के ऊपर इसके, that we will have to decide this matter differently. Does that Say, answer your question? sir, absolutely, sir, absolutely. Thank you so much for explaining such small things in a great way. So I think we shall be moving towards ending the session. Sir, any message for the law students or the audience that are watching us? A message? Yes, sir. I believe that because I know that all of you are law students, I believe that one thing that you should inculcate in yourself is that you have to become independent legal practitioners. Now, I understand most of you must be associated with some firm or with some association of persons. However, I personally, what I did was I always wanted to make my own views on all of these subjects. So do that. Always read law journals, read precedents, because जो होता ही है कि जब आप precedents पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल में पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आपकी जो व्यू होती है वो ऊपर शेल तक नहीं रहती, वो बड़ी एक डीपली इंट्रेंस्ड व्यूज आपके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. And make up your own independent view, make your own independent how would I say it, independent thought process. It should not be dependent on your senior or who you're working with, but on you yourself. You as a lawyer, as a student of law, must not only learn the law but also be able to pronounce it. That being said, Shazeb, thank you to you. Thank you to the Law Students Council. And I see a logo of Kanun Dan as well. Thank you so much to Kanun Dan for having me over today. It was a great session. I really enjoyed, discussing all of these topics. And inshallah, maybe in the future, we will do this again. Thank you very much, Shazeb. Sir, thank you so much. Thank you so much for giving us some of very precious time from the busy schedule. We were having this session with the collaboration of Law Students Council and the team of Kanun Dan, the Legal Diaries. I would like to thank the whole team. And here we end our session. Inshallah, we'll be together in another session. Sir, we hope to have you again on board with us very soon, inshallah, in another brilliant session. Thank you so much. And the last message for all the audience. Thank you, sir. The last message: stay home, stay safe, stay quarantined, so that we could fight the challenges of COVID-19 and shift our activities on campus from online. Thank you so much. Peace out.